functions. So ध्यान देना. So I'm starting with the first question, number B ka. Question number 2. Here you know that you are given the value of cos x, and what is the value of cos x? It is minus half. Then x lies in which quadrant? It lies in second quadrant. It lies in second quadrant. And see the question, it is very much clear. It's written that find the values of the other trigonometric functions in each of the following. Now my question is, how many trigonometric functions do you have? You have total 6 trigonometric functions, and they are sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, and cot x. These are the 6 trigonometric functions in this topic chapter called trigonometry. Where sin and cosec, they are reciprocal. How sin and cosec are related? They are reciprocal. Reciprocal मतलब sin का जो रेशियो होता है, ये चीज याद होगा, मैंने लास्ट डे समझाया था. And there are 1 or 2 students जो आज नया वापस they have joined today only. तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो मैंने भेज दिया था, तो वो वीडियो देखना चाहिए था ठीक से. तो sin x और cosec x का जो रेशियो होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. cos x और sec x का रेसिप्रोकल होता है, tan x और cot x एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. ऑलराइट, cos x का वैल्यू दिया हुआ है, सो फ्रॉम हियर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sec x. कैसे? cos x से sec x कैसे मिलेगा? जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन? x lies in second quadrant. You know that in the first quadrant all the functions are positive. As I had explained in the last class, first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. In first quadrant, all functions are positive. Second quadrant, sine and cosec, these two functions are positive. Third में tan and cot. Fourth में cos and sec. And you can remember this formula. This first quadrant में all सारा functions positive होते हैं. By using this, add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Add A stands for all. Sugar का S stands for sine. 2 का T stands for tan. Coffee का C stands for cos. और दोनों functions एक दूसरे का रेसिप्रोकल जो मैंने बाकी जो लिखा है. ओके, तो यहाँ ध्यान से नोट करना, sec x तो मिल गया. अब हम क्या निकालेंगे देखना है, sin x निकालेंगे. क्यों? And please avoid that triangle method which you have done in class 10. Don't use this triangle method now. Avoid that. हम क्या करेंगे देखना एक बार. cos x से हम sin x निकालेंगे. कैसे? We all know that sin square x plus cos square x is equals to 1. Put the value of cos x, which is minus half. And you all know that cos square x means cos x का whole square. Alright everyone? Cos square x means cos x का whole square. And the value of cos x is minus half. So it is minus half का whole square. Alright everyone? Square of minus half is negative number का square positive हो जाएगा. 1 by 2 का square 1 by 4 हो जाएगा. Take this 1 by 4 on the right hand side. And sin square x means sin x का whole square is 3 by 4. So what will be sin x then? Sin x will be plus minus. You know why? Because if x square is equals to 4, the value of x is not just square root of 4. It's not just plus square root of 4, but it is plus and minus both and square root of 4. Because we find that there are two values of x, that is plus 2 whose square is equals to 4. Second value is minus 2 whose square is equals to 4. So that's why what we do, x square अगर 4 है तो x क्या होता है, प्लस माइनस होता है. ये मैंने पहले ही बताया था.
तो यहाँ पे अगर sin x होल स्क्वायर 3/4 है तो sin x कितना होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4. So whenever you are doing sums, talk to yourself so that you can identify your mistake. तुम खुद को जब समझाना चालू कर देगा उस दिन से मैथ्स का इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा. एंड द क्वेश्चन इज, अब ये जो दोनों साइन में प्लस और माइनस में हम लोग को कौन सा साइन लेना है? डिपेंड्स ऑन एंगल. एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करना है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है. यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव वैल्यू. 3 is not a perfect square, 4 is a perfect square. And you must write down the reason that since x lies in second quadrant, that's why the value of sine function is positive. You are ignoring the negative answer. Next, sine के बाद हम लोग tan x निकाल सकते हैं because tan x is sin x divided by cos x. The value of sin x is root 3 by 2. The value of cos x is minus half. 2 gets cancelled and we are getting minus root 3. Alright. So this is tan x which is minus root 3. And we know that x lies in which quadrant? Second quadrant. So in second quadrant, tan function is negative. So you are getting negative answer. Just check. यहाँ पर हमको रीजन कहाँ लिखना होता है बताओ तो? जहाँ पे दो आंसर आते हैं और तुमको चूज करना होता है तब वहां से चूज कौन सा करना है क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है. लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी आंसर नेगेटिव आ गया. क्यों आया? बिकॉज हमको पता है कि tan is sin x by cos x. तो tan और जो x है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव. हैज टू बी नेगेटिव. अदरवाइज इट मींस दैट इन द प्रीवियस फंक्शंस तुमने या तो sin x का वैल्यू गलत निकाला है या cos x का वैल्यू गलत निकाला. अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव नहीं आता तो यहाँ पे दो आंसर नहीं है प्लस माइनस तो यहाँ पे तुमको चूज करने का जरूरत नहीं है. जहां पे दो आंसर है तुमको चूज करना पड़ेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से. यहाँ पे नहीं. नेक्स्ट, tan x मिल गया, sin x मिल गया, cosec x एंड cot x तो इजीली मिल जाएगा. कैसे? cosec x is reciprocal of sin function which is 2 by root 3 and cot x is reciprocal of tan function which is minus 1 by root 3. All right everyone. So what I have done, let me brief entire thing. cos x और x दो इंफॉर्मेशन दिया है. cos x का वैल्यू और x का क्वाड्रेंट दिया है. x कौन से क्वाड्रेंट में बताया गया. cos x से sec x निकाल दिया बिकॉज़ ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. cos x यूज करके मैंने sin x निकाल दिया बिकॉज़ sin square x plus cos square x is 1. सिमिलरली अगर मान लो sin x दिया रहता तो cos x निकाल देते. ठीक है. दो आंसर है. नेगेटिव को इग्नोर कर दिया बिकॉज़ सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? पॉजिटिव. tan x क्या है? cos sin x by cos x. sin x divided by cos x. Then cot x is reciprocal of tan and cosec x is reciprocal of sin. I want everyone to copy down, and if you have any doubt, please you can unmute yourself and ask me doubts. Regarding quadrants and all, it was already explained to you in the last class. In the last class, I had explained you about trigonometric functions, angles and all. There are many students जिनको मैंने link भी forward कर दिया, वो देखना चाहिए. But then also कोई अगर doubt है, confusion है तो clear कर.
So I'm getting the second question of similar type. You will do it right now, and then we'll do the next topic, how to find out the values of sine 135, cos 135, and so on. So everyone, so यहाँ पे sec x का वैल्यू दिया हुआ है, x सेकेंड क्वार्टर में लाई कर रहे हैं, और तुमको बाकी 5 फंक्शंस मतलब cos, sin, cosec, cot and tan इसका वैल्यू निकालना है. So I want everyone to try and complete first. If you face any doubt, I'll surely help you, but try once first. Okay. So I'm just solving so that you can check your answer. So you are given the value of sec x, which is minus 4 by root 15. X lies in second quadrant. These are the two things given to us. Now using sec x, we can clearly find out cos x. And it is nothing but reciprocal of sec function, which is square root of 15 by 4. After we know cos x, we can determine sin x. Put the value of cos x here. And simplify. इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 by 60. Take this on the right hand side. And take LCM. You get 1 by 16. So sin x is, if sin square x is 1 by 60, sin x is plus minus 1 by 4. Where you know that x lies in which quadrant? Second quadrant. In second quadrant, sin function is only positive. Sin और cosec के अलावा बाकी सब negative. Why you are ignoring negative answer? For this, you must write down the reason for this. Because second quadrant में sin क्या होता है? Positive. Next, cosec x is reciprocal of sin function, and tan x is sin x divided by cos x, which is 1 by 4 divided by minus root 15 by 4. 4 gets cancelled. Okay, the answer is minus 1 by root 15. Then cot x is reciprocal of tan function,
Okay, you may check your answer whether it's matching with what I have written on the board or not. If yes, we can move ahead. If अगर match नहीं कर रहा, you can respond by unmuting a device and asking whatever doubts you have. Anyone? Yes? समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने? हाँ हाँ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रही है? फॉर्मूला नहीं पता है तुमको? बाकी sec square x minus tan square x equals to 1, वो तो लास्ट डे लिखवाया था तुमने। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला क्लास 10 का है, लास्ट डे मैंने लिखवाया नहीं था। और क्योंकि मैं ऐसे इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ बिकॉज तुम ट्रिग्नोमेट्री ये ऑलरेडी कर ली है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लाइक नोट करके रखो कॉपी में सब चीज, सो दैट यू कैन मूव अहेड। स्टूडेंट्स डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट आस्क डाउट्स, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली इसके लिए इसीलिए बोला क्योंकि ही इज अ स्टूडेंट हु हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 90% ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये फॉर्मूला इसको नहीं पता है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट मैं एक बार बता रहा हूं पहले तुम लोग को, ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना एक बार, बी का नंबर 2 मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं। नाउ लिसन एवरीवन, in question number 2 we are given two things: the value of sin theta, which is 3 by 5, and the value of tan phi, which is 1 by 2. Theta is greater than pi by 2, less than pi, phi is greater than pi, and less than 3 pi by 2. And you have to find out, question is, find out 8 tan theta minus root 5 sec phi. इसका हम लोग को वैल्यू निकालना। तो एक बार ध्यान से सबको नोट करें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार पहले पूरा क्वेश्चन को समझो। करना तुम लोग को ये, सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन में इसका मतलब क्या है? यू नो दैट पाई बाय 2, लास्ट क्लास में मैंने बताया था पाई बाय 2 रेडियन में है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, so we have to multiply 180 by pi. And what is the answer? It's 90 degree. I mean pi by 2 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 by pi, the answer is 90 degree. So we can say that theta is greater than 90 degree. Less than pi means 180 degree. Phi is greater than 180 degree. Less than 3 pi by 2. And what is 3 pi by 2? It is 270 degree. Check it. Now you know that first quadrant का range होता है 0 to 90. Second quadrant का range होता है 90 to 180. Third quadrant is 180 to 270. And fourth quadrant is 270 to 360. These things you want. So theta is more than 90 and less than 180. Means theta lies in which quadrant? Second quadrant. Okay, everyone. Phi is more than 180 and less than 270. So phi lies in which quadrant? Third quadrant. ओके, तो हमको इसका मतलब क्या था कि हमको यहाँ पे रेंज दिया हुआ था एंगल का थीटा और फाई का, और हम लोग को क्वाड्रेंट जानना था। अब सुनो यहाँ पे सब, see in this calculation we have to calculate the value of 8 tan theta minus root 5 sec phi. I repeat, we have to find out the value of 8 into tan theta minus root 5 sec phi, मतलब हम लोग को tan theta चाहिए। तो tan थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा दिया हुआ है, पहले उसे cos थीटा निकालो। sin थीटा और cos थीटा मिलके tan थीटा निकालो। कैसे?
tan theta is sin theta का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos theta का वैल्यू. Is this okay or not? tan phi से डायरेक्ट sin phi निकालना. कैसे? sec square phi minus tan square phi equals to 1. Are you understanding everyone what I am saying? tan phi दिया हुआ है और हमको यहाँ पे sec phi का वैल्यू का जरूरत है. तो sec square phi minus tan square phi is equals to 1. यहाँ पे tan phi पुट कर देना, sec phi निकल जाएगा. देखना sec phi का दो आंसर आएगा और यहाँ पे cos थीटा का दो आंसर आएगा. तुम एक बार देख लेना कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव. और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है. सो एक बार तुम लोग एक एक करके ट्राई करो. पहले तुम sin थीटा से cos थीटा निकालो, ध्यान रखिए ये वाला पार्ट, और उससे tan थीटा निकालो. करो तो पहले सब कुछ. I want everyone to try. No one is sick. Everyone must try. I hope you understood the meaning of the question. एक बार मुझे पता नहीं, एक बार तुम लोग कर लो, मैं एक बार सॉल्व करके बता दूंगा. Just a minute. Everyone must try. There are HTML. I'll solve it on the board, but everyone must try. मैं सॉल्व करके बता दूंगा. अगर कहीं मिस्टेक है तो अपना चेक कर लेना. So everyone, note down here everyone. I'll just help you all, okay? Like just checking your answer. Sin थीटा से तुम लोग जब cos थीटा निकाला होगा तो फिर तुम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया होगा, ठीक है? cos sin थीटा का वैल्यू पुट करके जब cos थीटा निकाला होगा तुम लोगों ने तो दो आंसर आएगा. व्हाट इज दैट टू आंसर? प्लस माइनस 4/5. ठीक है? बट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec ये दो सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे हम लोग -4/5 लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे. रीजन क्या है? थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक cos थीटा क्यों निकाले हम? टू नो द वैल्यू ऑफ tan थीटा which is sin theta divided by cos theta, and the answer is -3/4. all right. उसके बाद हम लोग tan phi से ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट sec phi निकालेंगे. sec square phi minus tan square phi is 1. Put the value of tan phi and you will get sec square phi equals to 5/4. तो यहां से sec phi कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √5/2. बट as phi lies in which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में
सेक का वैल्यू क्या होगा, ऑल साइड टैन तो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या दो चीज पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट. Okay, I'm just writing pi here. Okay, now अब हमको निकालना है वैल्यू 8 tan थीटा माइनस रूट 5 sin phi का वैल्यू. tan थीटा का वैल्यू पुट कर दिया जो कि क्या है -3/4, it's -3/4 and the value of sin phi is how much, it's minus root 5/2. So it is how much, it is -6 minus minus plus root 5 into root 5 is 5. Take LCM. The answer is -7/2. Please check everyone whether this is the answer which you have got or not. Tell me. Yes. Okay. Now one more sum. Okay, and that is number 5. Okay, and then we'll move to the next topic, as I said you, how to find out the value of functions whose angle is more than 90 degree. बस एक और sum कराएंगे बस. किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं. So I'm erasing this sum now. Next. किसी को कोई डाउट नहीं है? Now question number 5. So here in this sum you are given the value of cos A. And what is the value of cos A? It is 0.6. I'm better at 0.6 in fraction form, okay? Because sum will become more easy. Always keep in fraction form only, ratio form. और यहाँ पे आपको निकालना है वैल्यू 5 sin A minus 3 tan A का वैल्यू निकालना. Now just note down, we need the value of sin A and tan A. But अगर एक और चीज, यहाँ पे cos A का वैल्यू तो दे दिया, लेकिन एंगल के बारे में बोला है कि कौन सा क्वाड्रेंट है. Now एक बात बताओ तुम, cos A का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, so what do you conclude from here? I repeat, the value of cos A is positive, okay? So as it is positive, एक कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो बताओ तो एक बार cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? It is positive in first quadrant and fourth quadrant. Okay? It means that A, this angle A, either lies in first quadrant or in fourth quadrant. So since cos A is positive, we can plus bracket के अंदर V positive. अच्छा चलो positive. Since cos A is positive, so therefore we can say that A lies in first quadrant or fourth quadrant. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्स्ट में लाई करेगा, हम ये भी नहीं बोल सकते फोर्थ में लाई करेगा. हम ये बोलना पड़ेगा मुझे कि या तो वो फर्स्ट में लाई कर सकता है या फोर्थ में, बिकॉज फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है. ओके, अब हम एक काम करते हैं, sin A का वैल्यू निकालते हैं. So for this everyone, you all know that sin square A plus cos square A is 1. Put the value of cos A, which is 3/5. So you find that it is 9/25. So sin A will be plus minus 4/5. But as you know that A lies in which quadrant?
either first or fourth. If we take first क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इफ आई टेक फोर्थ ये नेगेटिव होता है, मतलब मुझे दोनों आंसर लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है? सिंस ए लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आंसर है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आंसर, दोनों लेना पड़ेगा। उसके बाद tan a का वैल्यू, you know that tan a is sin a divided by cos a. What is the value of sin a? Plus minus 4 by 5. What is the value of cos a? It is 3 by 5. 5 gets cancelled. We are getting plus minus. So again I am saying that when you have two choices, you have to check कि कौन सा लेना है, और वो किस पे डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पे, क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो दोनों आंसर लेना पड़ेगा। जब एक आंसर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब दो आंसर है तो तुमको लिखना पड़ेगा कि क्यों तुम दो आंसर ले रहे हो, और अगर एक ले रहे हो तो क्यों एक ले रहे हो, उसका रीजन तुमको देना पड़ेगा। Since A lies in first or fourth. Next. अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। Now you have to find out 5 sin A minus 3 tan A का वैल्यू। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम दो क्वाड्रेंट लाइन कर रहे हैं, तो दो केस लेना पड़ेगा। एक केस, केस 1 when A lies in first quadrant, ठीक है? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका, बिकॉज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा और tan का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। So let us substitute the value of sin A as 4 by 5, 5 into 4 by 5 minus 3 into tan A का वैल्यू भी प्लस पॉजिटिव लेते हैं। 5 5 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 minus 4 is 6. Now let us take case 2. If A lies in fourth quadrant, fourth quadrant में the value of sin function is negative and the value of tan function is also negative. So 5 into minus 4 by 5, please use one bracket. 3 into minus 4 by 3 bracket. 5 5 gets cancelled, we are getting minus 4. 3 3 gets cancelled, minus minus plus 4. See, in both the cases we are getting 0. But लिखना चाहिए तुमको, दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन तुमको दोनों केस दिखाना पड़ेगा। Okay, so everyone copied on this sum. Now let's start the next topic, and that is how to find out the values of trigonometric functions. Anyone has got any doubt here? If you don't have any doubt, I'm erasing this part. Everyone is copied. And I will say one thing, every day whenever I give you the formula, please note it down in your formula copy. And I don't know what is the sequence of the formula. I'm just writing the formula, but you maintain sequence. मतलब जैसे मान लो नंबर 1 नंबर 2 दे दिया, 3 दे दिया, आज जो लिखवाएंगे 4 और 5 लिख देना, ऐसे करके सीक्वेंस मेंटेन करना तुम लोग। So now write down the formulas here.
Okay, writing these formulas. So everyone copy down this. I'll explain you what is this. Okay, you copy down, and it is better as you as an at home. So you have the formula copy with you. Properly write down all these formulas and maintain the sequence. Like if I have given 1, 2, 3, so mark this is 4, this is 5, ऐसे करके mark करना. कर दिया फटाफट. Now write down these few more formulas are there. Okay, write down that also. And then we'll start sums based on this formula. I'll explain you and then you can write down the sums. We can start the sums. Okay, have you copied this formula if you this part? I'm writing it. Okay. So everyone just copy down. Okay, so don't waste time. Copy करो मैं समझाऊंगा क्या. ठीक है? एक बार फटाफट copy करो.
So everyone copy down this first. Trigonometric functions, okay? Theta, if theta is greater than 90 degree, express theta equals to n into 90 degree plus minus phi and belongs to a natural number. Phi is less than 90 degree. Check the quadrant. If the quadrant is the quadrant of the given trigonometric function, TRIG dot मतलब trigonometric function, trigonometry. Then multiply positive else negative. Plus b मतलब positive, negative sign b मतलब negative. Check है. कहीं कॉपी कर लो फटाफट. This is equivalent, okay? Equivalent complementary. Complementary, okay? CUMPLEMENTARY. Complementary function. If n is odd, then keep the given trigonometric function same. Everyone has copied? Now see. I hope everyone has copied. Now let's move ahead and see the next part. So the मैंने पहला फॉर्मूला जो लिखा था, तो अगर इसमें कॉपी में ध्यान से नोट करना, तो cos of minus theta is cos theta and sec of minus theta is sec theta. बाकी सारा में जो एंगल है फंक्शन का नेगेटिव एंगल आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है. इसका रीजन क्या है? For this, I'll send you one video. You check that video, you will understand. I just इस क्लास में मैं वो चीज बताऊंगा जहां पे तुमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. बाकी वो हम वीडियो भेज देंगे, उससे देख लेना. तो इसका जो डेरिवेशन है, जो मैंने जो भी थर्ड के पहले जो दो फॉर्मूला और दे दिए, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, वीडियो में मैंने बनाया हुआ, वो हम भेज देंगे. बस तुम इसमें इतना ध्यान रखना कि cos of minus theta is cos theta, sec of minus theta is sec theta. Like for example, अगर तुमको मान लो बोला जाए find the value of sin of minus 30. So what is sin of minus 30? It is minus sin 30. What is the value of sin 30? Half. But वही अगर मान लो cos of minus 30 degree. So cos of minus theta is cos theta. And what is the value of cos 30? Root 3 by 2. Okay, so this is the difference and why. For that you have the video, you can check that. Next. तो पहला फॉर्मूला जो 6 मैंने दिया है वहां पे तुम देखो sec और cos में नेगेटिव एलिमिनेट हो जाता है, बाकी सारा में वो आगे मल्टीपल फॉर्म में. नेक्स्ट, उसके बाद देखो तीन फॉर्मूला मैंने दिया है, वो क्या है देखना एक बार. sin 90 minus theta is cos theta. What is the meaning of this? It means that there are total 6 functions in trigonometry: sin, cos, tan, cosec, sec and tot. Out these 6 functions में दो फंक्शन कैसे रिलेटेड है? रेसिप्रोकल. कौन कौन से दो फंक्शन? sin और cosec. अगर sin थीटा p by h होता है तो cosec थीटा क्या होता है? h by p होता है. इसको बोलते हैं लोग रेसिप्रोकल रेशियो रिलेशनशिप. जैसे sin और cosec में, tan और cot में, sec और cos में. बट एंगल्स का कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप किन दोनों में है? कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? मतलब you know that two angles are said to be complementary if their sum is equals to 90 degree, 90. So what is complementary of 30 degree? It is 60 degree, 60. देखो दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री. What is complementary of 10 degree? It is 80 degree. So what is the meaning of complementary angles? Two angles are said to be complementary if their sum is equals to 90 degree. And note down, sin का angle
कॉस का कंप्लीमेंट्री के बराबर होगा, मतलब साइन का एंगल कॉस का इस एंगल का कंप्लीमेंट्री के बराबर होगा। तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 60। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि sin 10 डिग्री cos के किस एंगल के बराबर है, cos of complementary of this angle. So what is complementary of 10 degree? 80 degree. If I ask you cos 50 degree is equals to sin of what? What is complementary of 50? 40 degree. Are you understanding my point? So we find that sin and cos, cos cos, not cosec. Sin and cos they are complementary. Which other two functions are complementary? Tan and cot. देखो लिखा हुआ है कॉपी में फॉर्मूला नंबर 2 में, और sec और cosec क्या होता है complementary. Clear है everyone? Next. You have anything to say? Like tan 20 degree, cot 70 degree के बराबर होगा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं complementary relation. अब ध्यान देना नेक्स्ट. अब ये तीसरा पार्ट है. तीसरा पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सब नोट करो. ध्यान देना. You know that this is first quadrant. स्टार्ट करते हैं तो पेन देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. यहां से यहां तक करके घूम के देखो, यहां से तुम स्टार्ट करोगे और यहां खत्म करोगे, मतलब तुमने कितना कौन से क्वाड्रेंट को घुमा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को घुमा है. स्टार्ट किया यहां से, यहां पे खत्म कर दिया. यहां से अगर यहां पे आया ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, कंप्लीट कर लिया सेकंड क्वाड्रेंट तक. थर्ड क्वाड्रेंट तक कंप्लीट कर लिया. फोर्थ क्वाड्रेंट तक कंप्लीट कर दिया. क्वाड्रेंट, क्वार्टर, क्वाड्रेंट मतलब चार हिस्सा का एक हिस्सा को क्वाड्रेंट बोलते हैं, है कि नहीं? तो सर्कल का चार हिस्सा का एक हिस्सा मतलब हो गया 90 डिग्री. तो ये हो गया सारे में 90 90 90 मतलब सब क्वाड्रेंट है, सब क्वाड्रेंट. ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. अब ध्यान देना जो नेक्स्ट. नाउ मान लो मैं ये बोलूं तुमसे कि व्हाट इज 4 into 90 plus 10 डिग्री, ठीक है? 4 into 90 plus 10 मतलब देखो ध्यान देना, एक बार 90 लॉजिकली सोचो, रटो मत. दो बार 90, तीन बार 90, चार बार 90, उसके बाद प्लस 10 डिग्री. तो आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे? ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे. हम लोग इस डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो 4 बार 90 यहां पे आ गया, उसके बाद प्लस 10 डिग्री है. तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट. मैं क्वाड्रेंट निकालना सिखा रहा हूं, क्वाड्रेंट कैसे निकालना है. सो 4 into 90 plus 10 degree means first quadrant. Now what is 5 into 90 plus 20 degree? 5 बार 90 मतलब 1 2 3 4 5 प्लस मतलब प्लस 20 मतलब इस लाइन के बाद वाले क्वाड्रेंट में जाओ. ये लाइन के बाद वाले आगे बढ़ेंगे ना, प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे. तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट. अब एक चीज तुम ऑब्जर्व करना, 4 बार 90 का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट राउंड, मतलब यहां से स्टार्ट करो और यहां पे आके समझ में आया? तो एक बात बताओ, 8 कंप्लीट राउंड का मतलब कितना होता है? 4 कंप्लीट राउंड का मतलब सॉरी 4 बार 90 का मतलब एक कंप्लीट राउंड. 8 बार 90 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड? 2 1 और 2, तब तो झट हो 8. 8 into 90 means 2 complete round. Clear out? Now plus 20 degree. तो दो कंप्लीट राउंड प्लस 20 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. समझ में आया? तो एक बात बताओ, 16 into 90 प्लस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ? कैसे? 16 बार 90 का मतलब हो गया 4 कंप्लीट राउंड. देखो मतलब 4 into 90 का मतलब एक कंप्लीट राउंड. तो 16 into 90 मतलब 4, 4 4 16, 4 कंप्लीट राउंड. यहाँ पे प्लस 10 मतलब 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, व्हाट इज 19 into 90 प्लस 20? बहुत सिंपल है इसको समझने. 19 into 90 plus 20 मतलब 16 बार. देखो 19 में 16 बार मतलब 4 कंप्लीट राउंड हो गया. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 16 बार मतलब 4 कंप्लीट राउंड. वो हो जाएगा 4 बार 4 कंप्लीट राउंड. तो 16 बार यहाँ पे 90 मतलब 16 17 18 19. उसके बाद प्लस 20 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट. So I hope you are understanding how to identify the quadrant. I hope you are getting my point. अगर वही यहाँ पे माइनस होता तो क्या आ जाता? 4 4 जा 16 17 18 19. 19 उसके बाद माइनस है इसके पहले, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. अगर किसी को डाउट है क्वाड्रेंट से रिलेटेड पूछ सकते हो तुम लोग. अनम्यूट करो और पूछ लो. देखो मैं अब ये बोल रहा हूँ, कुछ लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं, मैं फिर से वापस करा रहा हूँ. तो जो बाकी जो ऑलरेडी ज्वाइन किए
जिनको डाउट है प्लीज अभी लास्ट एंड फाइनल टाइम है, कितना बार मैं कराऊंगा एक टॉपिक, तुम लोग को पता है, अपने मोबाइल में देख लो कितना बार मैसेज आया होगा एक एक टॉपिक के लिए। तो अगर डाउट है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट्स। यस आई एम वेटिंग। Do you have any doubt in identifying the quadrant? Anyone? No. Okay, fine. Yes. Uh, who is here? Can you just tell me your name? Who is here? Can you tell me like क्या नाम है तुम्हारा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, नॉट स्कोर लाइक, जस्ट आई एम आस्किंग क्या नाम है? क्या नाम है? Okay. Okay, fine. I'm just explaining you quadrant once again. You are. This is the first time you are doing this topic. No problem. So Renuka, just note down here. What I'm explaining is, suppose you have got 3 to 90, okay, plus 10 degree, or let's say 40 degree. No problem. Any angle degree or 45 degree. 3 बार 90 का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से. 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90. उसके बाद क्या बताओ तो प्लस, इस लाइन के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 into 90 मतलब 4 into 90 plus 60 मतलब 4 बार 90 प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो 4 बार 90 उसके बाद माइनस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 बार 90 के बाद प्लस नहीं, आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है, तो पीछे थोड़ी ना, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे उस लाइन के जस्ट पहले वाला क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर माइनस हो तो प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे 9 into 90 प्लस 60 डिग्री, तो 9 into 90 का मतलब वेरी सिंपल, 8 बार 90 का मतलब 2 कंप्लीट राउंड होता है कि नहीं? 4 बार 90 का मतलब 1 कंप्लीट राउंड, 8 बार मतलब 2 कंप्लीट राउंड, वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, घुमा के नहीं दिखाया, ठीक है ना? उसके बाद 9 मतलब 9, उसके बाद प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया नहीं? बताओ एक बार, क्लियर हो गया? तो और किसी का देखो, और किसी का डाउट है? यस, so I'm moving ahead to the next next part. Okay, I mean यही part because अब quadrant समझाया मैंने, अब हम इसको समझाते हैं, ध्यान रखें। Now let us take an example. Let's take suppose sine 1260. ओके, और इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तुम लोग को ये सब का वैल्यूज तो पता होगा, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90, वैसे cos का tan का पता नहीं, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से एक बार नोट करना सब। सबसे पहला चीज, ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स हम कब अप्लाई करते हैं? अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर वो 90 से बड़ा हुआ, अगर वो एंगल 90 से बड़ा हुआ तो हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप, प्लीज स्टेप को ऑर्डर में फॉलो करना, मैं बता देता हूं इतना मैं मतलब बढ़िया से इस ऑर्डर से लिखा 1 2 3, प्लीज फॉलो 1 2 and 3 in this order only, but then also I know that after doing this sum you will use your own brain, and that is wrong way. So make sure that you follow this order. What is the first step? Express this angle as n into 90 degree plus minus 5. What does n stands for? N stands for natural number. What does phi stands for? Any angle less than 90 degree. So मतलब 30, 40, 45, 60 कुछ भी less than 90 होना चाहिए। तो ये एंगल को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मैं तुमको सिंपल तरीका बताता हूँ एक्सप्रेस करने का। समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको 90 से डिवाइड कर देंगे। 90 बन जाए 90, just a minute, I'll just take this angle as let's take 1320. I'll take this as 1320. So let me divide once. 40, okay. 4 9 are 36. What is the remainder? It's 60. Now you know that dividend is equals to divisor into question plus remainder. But don't write 90 into 40. पहले हम लोग लिखेंगे n into 90, 90 बाद में लिखना। तो क्या होगा 1320 को
14 into 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। देखो देखो, ठीक है, this into this plus this और this into this, but you follow this into 90 plus 60 लिख सकते हैं हम लोग। yes, do you have any doubt how I have expressed in this form? Anyone has got any doubt how I have expressed? No. Next, second step is check the quadrant check करो। अब एक्सप्रेस कर लिया, हाँ कर लिया एक्सप्रेस, क्वाड्रेंट चेक करो। किस लिए? इफ द क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वाड्रेंट है तब तो बहुत बढ़िया। अगर वो क्वाड्रेंट मतलब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है? साइन का और कोसेक का। थर्ड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है? टैन का और कॉट का। फोर्थ किसका क्वाड्रेंट है? कॉस का और सेक का। फर्स्ट किसका क्वाड्रेंट है? सारा फंक्शंस का। तो चेक करो कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, तो चेक करते हैं क्वाड्रेंट कैसे। 14 into 90 plus 60, कोई बता सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है? कैसे देखो एक बार, 14 तो बस सबसे सिंपल तरीका है, 12 बार मतलब 3 कंप्लीट राउंड है कि नहीं? 3 कंप्लीट, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड मतलब 4 बार, 4 बार 90, तो 14 बार 90 मतलब पहले 12 बार 90 हम लोग घूम लेते हैं। 12 बार 90 का मतलब कितना हो गया? 3 कंप्लीट राउंड। तो 12 12 13 14, उसके बाद प्लस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? 14 into 90 plus 60, अगर तुमको बार बार घुमा के दिखाना तो दिखा सकते हैं। एक बार, दो बार 8 हो गया, तीन बार मतलब 12 हो गया, 13 14, उसके बाद प्लस 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ फंक्शन का क्वाड्रेंट है या नहीं है? बताओ हाँ या ना में जवाब दो। तो थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ फंक्शन का जो क्वेश्चन में दिया उसका वो क्वाड्रेंट नहीं है। नहीं है तो नेगेटिव दे दो, और होता है तो पॉजिटिव होता है आंसर। साइन समझ में आया? खत्म हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, चेक एन। एन मतलब 14 है यहाँ पे। अगर एन ऑड होगा, देखो ऑड होगा तो चेंज करो। चेंज किस में करेंगे? कंप्लीमेंट्री में। और अगर इवन होगा तो सेम रखेंगे। क्या ये ऑड है या इवन है? बताओ, एन ऑड है या इवन है? बताओ। इवन। इवन मतलब देखो, इवन मतलब सेम, ऑड मतलब चेंज। इवन मतलब सेम, सेम मतलब साइन है तो साइन, साइन प्लस माइनस नहीं बोल रहा हूं, साइन मतलब साइन कॉस। इवन है तो सेम रखो, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन। ऑड है तो चेंज करो। तो चेंज किसमें करते बताओ? तो अगर ये ऑड होता है तो साइन को किसमें चेंज करते बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री में। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? क्या होता है? कॉस होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। कॉस का साइन, टैन का कॉट, अभी बताया था मैंने, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। इवन है तो सेम। व्हाट इज द एंगल? फाई क्या है? फाई 60 डिग्री है। व्हाट इज sin 60 डिग्री? √3। एक बार कॉपी करो फटाफट से। ऐसे दो तीन एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। एक बार कॉपी करो। Now, let me take one more example. Let us take, for example, sine of 135 डिग्री। वो तो बहुत बड़ा एंगल था तो डिवाइड करके हम लोगों ने एक्सप्रेस किया। ये डायरेक्ट दिख ही रहा है कि 1 into 90 हो गया ना। 1 into 90 कितना होता है? 90। अब 90 में क्या ऐड करने से 135 आएगा? प्लस 45 हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एक्सप्रेस कर दिया। सेकंड स्टेप, क्वाड्रेंट चेक करो। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? एक बार 90 प्लस 45, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन दिया हुआ फंक्शन, मेक श्योर फॉलो द ऑर्डर। दिया हुआ फंक्शन उस क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन है। चेक करो तीसरा स्टेप, ऑड इवन चेक करो। ऑड है तो चेंज करना होगा, याद है ना? देखो ऑड में चेंज, चेंज किस में? कंप्लीमेंट्री में। इवन है तो सेम, ऑड है तो चेंज, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। What is the answer? It's 1/2. All right, everyone.
I can do this in another way also, and that is sin 2 into 90. 2 into 90 कितना होता है? 180 होता है। 180 में कितना माइनस करेंगे? 8 तो अब तुम बोलेगा सर आप यहाँ ऐड किए, ऐड क्यों नहीं करते? तुम दिमाग लगाओ, 2 into 90 तो 180 होता है ना, 180 में ऐड करने से तो और बड़ा हो जाएगा, तो 135 चाहिए। 45 क्वाड्रेंट चेक करो, 2 बार 90 माइनस मतलब इस लाइन के पहले वाला क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब लास्ट पार्ट इवन और चेक करो, इवन है तो सेम, सेम मतलब साइन साइन ही रहेगा। मैंने टेस्ट में जो लिया था भी देखा था, सब कोई क्या करो, ये माइनस के साथ यहाँ पे एंगल लिख रहा है, प्लीज डोंट डू दैट। व्हाट इज फाइ? फाइ इज 45 डिग्री, जस्ट फाइ 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ऑलराइट एवरीवन, अब मैं कुछ सम बताऊंगा जहां पे साइन या कॉस जो भी होगा उसका एंगल नेगेटिव होगा, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है लेट्स सी। कॉपी करनी है। So let us take one example. Let's say tan minus 225 degree. Let's take this. Copy करने पड़ेगा। ओके, नाउ सी। सबसे पहला चीज, आज मैंने फॉर्मूला दिया था कि नहीं? क्या फॉर्मूला दिया था कि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ओके, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ऑलराइट एवरीवन, ओके नेक्स्ट। tan ये एंगल 90 से बड़ा है, ये जो मैंने बताया ना ये तरीका तभी एप्लीकेबल है अगर एंगल 90 से बड़ा हो, तो नहीं तो नहीं। 30 40 45 ऐसा होगा तो नहीं लगाएंगे। करना क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है हम लोग को इस फॉर्म में n into 90, तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो और थोड़ा बुद्धि लगा के भी कर सकते हो। क्या इसको लिख सकते हो हम लोग 2 into 90 which is 180। 180 में क्या ऐड करेंगे तो 225 है, 45। याद रखना मल्टीपल ऑफ 90 और कुछ नहीं। अभी फिलहाल मल्टीपल ऑफ 90 में रखो। अब हो गया पहला पार्ट, सेकंड पार्ट क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 2 बार 90 उसके बाद प्लस मतलब इस लाइन के बाद वाला क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? क्या वो उसका क्वाड्रेंट है? हाँ या नहीं बताओ। यस, अगर है तो हम लोग पहला बात, ये साइन से कोई लेना देना नहीं है, साइन नेगेटिव है और वो नेगेटिव रहने दो, ये ऑलरेडी है, इससे हमको क्या मतलब है, तो साइन अभी रखेंगे। अब tan फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन देगा। बहुत में क्या करेगा पता है? इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो दिमाग लगाओ, ये नेगेटिव ऑलरेडी है और तुम क्वाड्रेंट चेक कर रहे हो तो वो थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एक और दे दो यहाँ। अब चेक करेंगे तो ये इवन है या ऑड है? इवन। इवन है तो सेम, सेम मतलब tan tan ही रहेगा। minus plus minus, and what is the value of tan 45 degree? It is 1. All right, I hope I made myself clear. Okay, एक और एग्जांपल देता हूं, तब आज का क्लास इतना तक ही रहने दें, ठीक है? जैसे मान लो tan minus 315, tan of minus theta is minus tan। अब बताओ तो 315 को कैसे लिखेंगे हम लोग इस फॉर्म में? बताओ तो, कोई बताओ। यस, 3 into 90 plus 45। दिमाग नहीं चल रहा है तो फिर ऐसे कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है ना? दिमाग चलना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 into 90 plus 45। उसके बाद क्वाड्रेंट, 3 into 90 plus 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है? कॉस और सेक का, tan का नहीं। नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑलरेडी है, एक और नेगेटिव साइन। ऑड है तो बदल दो, कंप्लीमेंट्री में tan का कंप्लीमेंट्री कॉट होता है, माइनस माइनस प्लस, and the value of cot 45 degree is 1. So this way what I have done is I have completed trigonometric functions ka till number 9.
you will be able to do number till number 9. एक और क्लास चाहिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा कंप्लीट कर दूंगा. ओके सो एवरीवन कॉपी ऑन क्लास. Just tell me what is the question. Cosec minus 1410. What is cosec of minus theta? Minus cosec. ओके tell me 1410 डिग्री को हम लोग क्या ले सकते हैं डिवाइड कर लो 90 से. So we can write this as 15 into 90 plus 60 है कि नहीं. और 15 15 into 90 plus 60 मतलब 12 बार तो यहाँ पे आएगा. सिंपल सीधा कैलकुलेशन 12 बार तो यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 का प्लेट और 12 हो गया. 12 13 14 and 15 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बताओ. यस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या दो चीज पॉजिटिव होता है कॉस एंड सेक. बाकी सब नेगेटिव होता है. नॉट कोसेक कॉस एंड सेक आई सेड. ठीक है तो ये बाकी सब नेगेटिव है. ऑड है तो चेंज चेंज मतलब कॉस एंड सेक में बदल जाएगा. माइनस माइनस प्लस and what is the value of sec 60? It's 2 by sorry it's 2. Did you get the answer now? So this is so we have